So today we are going to read first chapter of your SSC class 5th term 3rd India wins freedom. In this chapter we will learn about foundation of Indian National Congress, partition of Bengal, arrival of Mahatma Gandhi, India got freedom. इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी एंड इंडिया गॉट फ्रीडम. टू बिगिन विथ, अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? स्पीक अबाउट ड्रीम, योर ड्रीम रिगार्डिंग फ्री इंडिया. आपको अपने सपनों को बताना है फ्री इंडिया के रिगार्डिंग. आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं उनको आपको बताना है. सोशल रिफॉर्मर्स. Failure of the first war of independence did not bring down the spirit of freedom among the people of India. Leaders of various walks of life started analyzing the reasons for the failure. The British introduced modern education in India. Social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and spiritual leaders like Swami Vivekananda started educating people about the social practices such as sati, child marriage, caste system prevailing in India at that time. They also encouraged education of women and widow remarriage. According to them, the ignorance of the people had to be treated before they could fight against the British Raj. The effort of these leaders enhanced the spirit of freedom in Indian masses. People realized that they have to unite and fight against the British. This led to the foundation of many political associations, including the Indian National Congress. फर्स्ट वॉर जो था इंडिपेंडेंस का, उसके फेल्यूर के बाद जो लीडर्स थे उन्होंने ये एनालाइज करना शुरू कर दिया कि उस फेल्योर के रीज़न क्या थे, और उसके जड़ तक पहुंचने के बाद उनको ये पता चला कि जो कास्ट सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज, विडो जो कास्ट सिस्टम यहाँ पर चल रहा था इंडिया में, उसके कारण बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे थे. और फिर जो लीडर्स थे, जैसे स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद वगैरह, उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया. उन्होंने लोगों को ये समझाया कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम फ्री नहीं हो सकते. द लीडर्स बिलीव्ड इन टू फिलोसॉफीज. वन ग्रुप कंसिस्टेड of leaders like Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji, W.C. Banerjee. They believed in achieving freedom in a peaceful way without any sort of violence. Such leaders were known as moderates. अब जो ये लीडर्स थे वो टू फिलोसॉफीज़ में सोचते थे. एक ग्रुप में गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बैनर्जी और दादाभाई नेरोजी थे, जो ये मानते थे कि हमें फ्रीडम पीसफुल वे में लेनी होगी, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, बिना किसी वायलेंस के. और ऐसे लीडर्स मॉडरेट्स कहे जाते हैं. द अदर ग्रुप adopted the path of violence and threat to achieve freedom from British. Such leaders were known as radicals. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal were some well-known radicals. The three leaders, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, were popularly known as the Lal Bal Pal. अब जो दूसरा ग्रुप था फ्रीडम के लीडर्स का, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, उनका ये मानना था कि उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया और फिर फ्रीडम हासिल करने का जज्बा दिखाया, और ऐसे ग्रुप को रेडिकल्स कहा जाता था. द इंडियन नेशनल कांग्रेस. Surendranath Banerjee, who is popularly known as Rashtraguru, spoke of a nation, a white political association. The Indian National Congress was formed
in the year 1885 by an Englishman, Alan Octavian Hume. He was retired British officer. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो कि राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने नेशन को एक वाइड पॉलिटिकल एसोसिएशन कहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ईयर 1885 में फॉर्म्ड हुई थी, जो फॉर्म की थी एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने। वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was held in Bombay, now Mumbai. It was attended by 72 members from all over the world. Its president was W.C. Banerjee. The people of India provided an overwhelming support to the Congress, which laid a strong foundation for this movement. अब जो फर्स्ट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो मुंबई में हुआ था। ये वर्ल्ड के 72 मेंबर्स ने अटेंड किया था, जिसके प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। और जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसने इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया। The Congress demanded that the British should employ Indians as higher officials in administration and bring about political reforms. The demand was rejected by the British government. जो कांग्रेस थी उन्होंने ये डिमांड किया था कि इंडियंस को एज अ हायर ऑफिशियल्स अपॉइंट करे ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर ये डिमांड जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। The radical group criticized the policy of moderates and acted violently to impose demands. Bal Gangadhar Tilak was the first demand Swaraj, self-rule, as the destiny of nation. His slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it, was a source of inspiration for many Indians. It became very popular through हिज न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी। अब जो रेडिकल ग्रुप था, उन्होंने मॉडरेट्स की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया और वायलेंटली एक्ट किया अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। बाल गंगाधर तिलक की फर्स्ट डिमांड थी स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये जो स्लोगन था, ये बहुत सारे इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन बन गया उस टाइम पे, और ये स्लोगन बहुत ही पॉपुलर बना उनके न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसका नाम था केसरी। अब आते हैं हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। बंगाल वॉज देन द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विच इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। In 1905, Lord Curzon divided Bengal into two territories, a Muslim majority East Bengal and a Hindu majority West Bengal. The people and the national leaders realized that this was divide and rule policy of the British government. अब जो बंगाल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के पार्ट्स भी इंक्लूडेड थे, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, टू टेरिटरीज़ में। जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो गई ईस्ट बंगाल में और हिंदू मेजॉरिटी गई वेस्ट बंगाल में। और जो वहाँ के लोग थे और नेशनल लीडर्स थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। In protest, the Swadeshi movement was started by the Indians. They decided to buy only Indian goods and boycott foreign goods. The British tried to suppress the movement but were unsuccessful. As a result, they had to revoke the partition of Bengal. अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें ये था कि जो इंडियंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम केवल इंडियन गुड्स ही खरीदेंगे और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की इस मूवमेंट को सप्रेस करने की, पर अनसक्सेसफुल रहे, और रिज़ल्ट ये रहा कि उन्हें बीच में ही बंगाल के पार्टीशन को रोकना पड़ा। The revolutionaries.
Some young Indians were not satisfied with the leaders of the Congress. These revolutionaries were mainly concentrated in Bengal, Maharashtra, Bihar, the United Provinces, Uttar Pradesh, and पंजाब पंजाब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, सूर्या सेन, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, राज बिहारी बोस, जतिन दास were revolutionaries. They believed that the British could be driven out of India only through force. Some of these revolutionaries was later arrested and hanged. अब कुछ जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो कुछ यंग इंडियंस जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे कांग्रेस के लीडर्स से उनका और ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये मेनली बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब के थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, सूर्या सेन, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, राज बिहारी बोस, जतिन दास, ये सारे रिवॉल्यूशनरीज थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया से बिना फोर्स के नहीं जा सकते और इसके बाद कुछ जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पे चढ़ा दिया गया। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी was a barrister who went to South Africa. Here he fought against racial discrimination committed by the white rulers. He returned to India in 1915 and joined the freedom struggle. Gandhiji was a disciple of Gopal Krishna Gokhale. He adopted the policy of Satyagraha, which was based on truth and non-violence. मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी जो थे वो बैरिस्टर थे जो साउथ अफ्रीका गए थे। यहाँ पर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जो वाइट रूलर्स के द्वारा चलाया जा रहा था। फिर वो 1915 में वापस वो इंडिया रिटर्न हुए और फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया। गांधी जी जो थे वो डिसिपल थे गोपाल कृष्ण गोखले के, तो उन्होंने सत्याग्रह की पॉलिसी को अपनाया जो ट्रथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी। अब आते हैं हम रोलेट एक्ट पे। द ब्रिटिश पास्ड रोलेट एक्ट इन 1919. It was also known as Black Act. The act empowered the government to put people in jail without any trial. On 13 April 1919, people gathered in Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of two leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlu. The British General Dyer blocked the main entrance and ordered his soldiers to fire at the unarmed crowd. Hundreds of people were killed and thousands were injured. This provoked a great rage amongst the Indians against the British government. Rabindranath Tagore returned his knighthood title to the government. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रोलेट एक्ट पास किया 1919 को। ये ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये एक्ट ये कहता था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाए, ठीक है, बिना किसी जुर्म के। 13 अप्रैल 1919 में जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग अमृतसर में प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि दो जो लीडर्स थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ब्रिटिश जनरल डायर ने मेन एंट्रेंस जो था जलियांवाला बाग का वो बंद करवा दिया और उनके सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अनआर्म्ड क्राउड पे गोलियां चला दिए। तो उसमें हंड्रेड्स का जो क्राउड था वो किल्ड हो गया था और थाउजेंड्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। और इस घटना के कारण लोगों में और जुनून आ गया और जज्बा आ गया और उन्होंने बहुत सही तरीके से लड़ाई की फ्रीडम के लिए। अब आते हैं हम खिलाफत मूवमेंट में। मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया शौकत अली एंड मोहम्मद अली was popularly known as Ali brothers started Khilafat movement in 1919 to protest against the British treatment of the Caliph
or the Sultan of Turkey, their religious head, an alliance was made between Indian National Congress and Khilafat leaders to work and fight together for the cause of Khilafat, and Swaraj strikes and acts of civil disobedience spread across India. अब जो मुस्लिम लीडर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जो पॉपुलरली अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। जो खालिफ थे, सुल्तान थे, वो तुर्की के, और एक अलायंस बना इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स के बीच में कि वो साथ में वर्क करेंगे, साथ में लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि खिलाफत स्वराज दोनों साथ में इंडिया में फैल गए, और साथ में सिविल डिसोबीडियंस भी पूरे इंडिया में फैल चुका था। अब आते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। द मैस्करेड जलियांवाला बाग strengthened the hands of Indian. The Congress launched non-cooperation movement. People were asked to disobey laws peacefully. जो जलियांवाला बाग की घटना थी, उसके बाद इंडियंस और स्ट्रॉन्ग हो गए। कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसमें लोगों से बोला गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो पीसफुली डिसोबे करें। Men and women from all over India supported this movement. Many famous lawyers and teachers of educational institutes gave away their titles and jobs to join the protest. However, an angry mob attacked and burnt a police station at Chori Chora in Uttar Pradesh. 22 policemen were killed. In this incident, Gandhiji was shocked by the violence. He withdrew the movement. अब जलियांवाला बाग की, अब जो मैन और वुमेन थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। बहुत सारे फेमस लॉयर्स, बहुत सारे टीचर्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते थे, उन्होंने अपनी जॉब्स जो थी वो गैव अप कर दी और प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। और फिर एक एंग्री जो ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो किल्ड हो गए थे। गांधी जी इस वायलेंस से बहुत शॉक्ड थे, तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो उसी समय बंद कर दिया। अब आते हैं हम साइमन कमीशन पे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द लॉ and order situation in India. They appointed Sir Simon in 1927 to head a commission to make some changes and reforms in the administration of India. The Indian National Congress boycotted the commission. When Sir Simon came to India, the protesters shouted slogans, Simon go back. Rajguru, Bhagat Singh, Sukhdev and Chandrasekhar Azad were the prominent revolutionaries who protested against Simon Commission. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुश्किल आ गई, वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सर साइमन को अपॉइंट किया और एक कमीशन का हेड बनाया जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन, ताकि वो कुछ चेंजेस ला सके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिकल रिफॉर्म में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को बायकॉट किया, और जब सर साइमन आए इंडिया में तो प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए, साइमन गो बैक। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने सर साइमन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अब आते हैं हम पूर्ण स्वराज पे। इन दिसंबर 1929 Congress passed resolution and demand complete independence or Purna Swaraj from the British government. Jawaharlal Nehru was elected as the president of the Congress. The Congress also decided that 26 January would be observed as the Independence Day all over country.
Every year, the first Independence Day was celebrated on 26 January 1930 in Kolkata. अब दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की, यानी कि पूर्ण स्वराज। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जो इंडिपेंडेंस डे है हर साल इंडिया में 26 जनवरी को मनाया जाएगा, और जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था वो सेलिब्रेट हुआ था 26 जनवरी 1930 में कलकत्ता में। अब आते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। द कांग्रेस लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी टू disobey the British laws. Foreign clothes were burned, government schools and colleges were boycotted, and cotton was spun using the charkha on a large scale. Peasants refused to pay tax. The British administration became strained still in many places. अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में गांधी जी की लीडरशिप के अंडर में, और लोगों को ये बोला गया कि वो ब्रिटिश लॉज को डिसओबे करे। फॉरेन क्लोथेस जलने जो लोग थे वो फॉरेन क्लोथेस को जलाने लगे थे, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस बाइकआउट होने लगे थे, और कॉटन जो था वो स्पन कर दिया गया था, और चरखा यूज़ होने लगा था लार्ज स्केल में। पीजेंट्स ने टैक्स पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। ओके, गांधी जी मार्च्ड टू डांडी इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स imposed by the British on making of salt. Gandhi ji broke salt law by making salt at Dandi. He and many of his followers were arrested. The civil disobedience movement came to an end in 1934. अब गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। जो टैक्स लगाए जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। सोल्ट लॉ के खिलाफ मार्च स्टार्ट कर दिया, डांडी मार्च। और उन इस चीज़ में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स और वो खुद भी अरेस्ट हो गए थे, और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो ख़त्म होने को चला था, 1934 में ख़त्म हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The British government announced the Government of India Act in August 1935. According to it, Indians were promised more participation in the administration, but the actual powers remained with the British. The Congress contested in the elections, won most of the provinces and formed the provincial government. अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया अगस्त 1935 में। इसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे उनसे ये प्रॉमिस किया कि उन्हें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, पर जो एक्चुअल पावर थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के साथ ही थी। जो कांग्रेस थी उन्होंने इलेक्शन कंसिस्ट किए, और बहुत सारी जो प्रोविंसेस थी वो जीती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई। अब आते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट पे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942 टू सिक्योर द इमीडिएट इंडिपेंडेंस। इंडियंस इंसिस्टेड दैट द ब्रिटिश मस्ट लीव इंडिया। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू डू और डाई in their attempt to throw the British out of the country. The Quit India movement made the British realize that they could not rule India any longer by force. They decided to leave India and go away. अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ अगस्त 1942 में। इमीडिएट फ्रीडम सिक्योर करने के लिए इंडियंस जो थे उन्होंने ये ठान लिया था कि अब ब्रिटिशर्स को
इंडिया लीव करना ही होगा। गांधी जी ने पीपल लोगों को बोल दिया था कि अब करो या मरो। तो गांधी जी ने अब जो लोग थे वो और ज़्यादा ज़ोर लगाने लगे ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर फेंकने के लिए। द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसने ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ करवाया कि अब हम और ज़्यादा यहाँ पर राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने वापस जाने की ठान ली। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस टुक द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड the frontiers of India. He took the leadership of Indian National Army INA or Azad Hind Force in Japan. He was greatest nationalist leader of India. He gave the slogan Jai Hind. अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल को बाहर ले गए फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। अब उन्होंने एक लीडरशिप ले ली थी इंडियन नेशनल आर्मी की, आईएनए की, आज़ाद हिंद फौज जापान की। ये बहुत ही ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे इंडिया के, और उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद का। Dawn of Indian independence. When the British decided to quit India, Muhammad Ali Jinnah, the leader of Muslim League, demanded separate nation of the Muslims. He wanted it to be known as Pakistan. अब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्विट करने का डिसीज़न लिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की, और वो ये चाहते थे कि वो जो सेपरेट नेशन है वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल एट लास्ट ऑन August 15th August 1947. The country was divided into two independent nations, India and Pakistan. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. Dr. Rajendra Prasad became the first President of India. अब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो लास्ट में जाके सक्सेसफुल हो गई। 15 अगस्त 1947 में जो कंट्री थी हमारी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट बाय रेज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, वेरी गुड। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम टू एंड इन 1934, वेरी गुड। द रॉलेट एक्ट passed by British in 1919, very good. The freedom fighters who believed in achieving freedom through peaceful methods without any sort of violence is known as moderates, very good. W.C. Banerjee was the first president of the Indian National Congress. The Rowlatt Act was called the Black Act. Gandhiji adopted Satyagraha to fight against the British. Quit India movement was launched in, कब लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जल्दी बताइए। नाइनटीन 42. So this chapter is finished.